پھر آپ کو وہ آپ آرڈرلی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب آپ کے عناصر کو، آپ کی مزاج کو اور آپ کی کیفیت کو اگر آپ صحیح طریقے سے ایک بار سمجھ لیا، پھر وہ طریقہ آپ آزمانے کی ضرورت نہیں پڑتے، خود بخود آپ کے اندر وہ چیز آ جاتا ہے. تب آپ کو پھر واپس اس کی سیکوینس کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ ہونا چاہیے ریئل نوئنگ. ورنہ کیا ہوتے کہ جب بھی ہم سوال کرتے سر فلانے عمر کی، اگر آپ کو پتا چلا کہ میری پیشنٹ کی مزاج میں صفراویت یا دمبیت یا سمجھو حرارت ہے، پھر آپ نیچے جا کے پھر پیچھے جا کے آپ باقی کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ کو مانے یہ ایک تحریک کا معاملہ ہے، یہ معاملہ تحریک کا ہے. اب اس کا علاج تسکین میں، یہ ایک فلسفی بہت ایک میں نے بتایا نا، ایک سوتر میں ایک شاستر ہے، ایک سوتر میں ایک شاستر ہے. پھر یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو پھر یار سودا سفرا مزاج، آپ کو اتنا معلوم بھائی یہاں تحریک کا ایشو ہے، تسکین کا اصلاح ہے. یا کا اصلاح یعنی مسلی یا تدابیر، یعنی میں سپوز آئی ایم ناٹ این حکیم، میں مدبر. ہم مدبر بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے ڈاکٹر لکھتا ہے نا، جیسے کہ علاؤدین مدبر، یا اجمل مدبر، یا عالم مدبر، یا فلانے ڈاکٹر مدبر، کہ اپنے آپ کو ہم مدبر بھی لکھ سکتے. تدبیر بتانے والے یا تدابیر بتانے والے کو ہم مدبر بھی کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر کو یہ مدبر ہے، یہ تدابیر بتائیں گے مجھے کیسے رہنا، کیسے سونا، کیا کرنا. یہ تدابیر بتانے کے لیے ہم کو اتنا کافی ہے کہ جو چیز، جو بھی مسئلہ آپ آ کے بتائیں گے، اس کی معاملہ آپ نے اگر سیکھ کے رکھے تو تدابیر اس کافی ہے، دوسری کوئی چیز کی ضرورت نہیں. تو یاد رکھو، کیونکہ ہم کو، میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھے بار بار پھر چلے جاتے سر ادھر کیا کرو ادھر کیا کرو. وہ نوئنگ کا مسئلہ ہے. وہ آپ اگر سپوز اگر صفراوی ہے یا خشکی کی معاملہ ہے، خشکی کی معاملہ ہے، معلوم ہے خشکی کی معاملہ، اس کے کجلی ہو، اس کی تھاٹ پروسیس ہو، اس کی ضدی پنا ہو، اس کی کوئی چیز میں وہ انرشیا، جو اس کی جو تمس جس کو کہتے تمس کی وجہ، اس کی انرشیا کی وجہ، اس کے اندر ہونے والے خشکی ہے. وہ خشکی پنا اس کی عادت میں، اس کی بیماری کی سمٹم میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کی بات کرنے کے انداز میں، ہر جگہ پہ وہ خشکی پنا آپ کو ملیں گے. ایک بار آپ معلوم پڑ لے یہ خشکی، یہ سلیب، یہ صلابت اس کو تکلیف دے رہے، پھر آپ کے پاس انفینٹی نمبرز کی، یعنی ان گنت نمبر کی تدابیر اگر آپ کے پاس ہے. نو ڈاؤٹ آپ ڈاکٹر کی جگہ لکھ سکتے یہ مدبر آدمی ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی تدابیر بتا دیں گے. تو ڈاکٹر کا نام کٹ کر ڈالو، حکیم کا نام کٹ کر ڈالو، محمد مدبر محمد نییر صاحب، یا کوئی بھی نام دے ڈالو. تو یہ ہمیشہ جب میرے مائنڈ میں ایک چیز رہتا ہے، وہ آپ لوگ کے مائنڈ میں بھی ہونا چاہیے. میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں ایک مدبر ہوں، ایک تدابیر بتانے والا ہوں، اور میں صرف دوا میں رہ کے تدابیر دوا کے تھرو اگر بتاتے جاؤ. ایک وقت اگر سپوز ایسا مان لیا کہ میں کئی جنگل میں، کئی صحرا میں، یا کئی سمندر میں، کئی پہاڑ میں پھنس گیا، میرے پاس ہے سنا ہے کہ آپ بہت بڑا مدبر ہو، ہم کو کچھ تدابیر چاہیے تھا فلانے تو آپ کو وہاں بیٹھ کے بھی کچھ تدابیر ان کو بتانا پڑے گی. تو دنیا میں دوا کے علاوہ بھی بہت سارے تدابیر ہے، وہ تدابیر سب سیکھو تاکہ ہم دوا سے باہر آ جائیں، ہماری سوچ بھی باہر آئے، ہماری حکمت بھی اس میں سے باہر آ جائے، تاکہ ہم بار بار ہر چیز سے وہ ٹول لے کے، تدبیر کی ٹول لے کے ہم کوئی چیز کا مسئلہ حل کر سکیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر گھوم پھر کے وہی مسئلے میں آ جاتے ہیں. پھر وہ دوا کرو، دوا نہیں کرنا، ایسا نہیں بول رہا میں،
جیسے ابھی فار ایگزامپل ایک آدمی، اگر آپ ایک نیچروپیتھی کے اسپتال کھولے، سپوز ایک نیچروپیتھی اسپتال کھولے، اس میں آپ مٹی سے لے کے، پانی سے لے کے، سورج کی روشنی سے لے کے، آواز سے لے کے، بغیر دوا سے لے کے، چھوٹی موٹی مفرد دوا سے لے کے، تمام چیز کی تدابیر سے اس کو علاج کر رہے ہیں. صبح اٹھتے ان کو بولتے گیلا کپڑا پہنو، یا گیلا کپڑا اس کے پیٹ میں زور سے باندھتا ہے اور اس کو سورج کے سامنے بٹھا ڈالتا ہے. ایک تدابیر ہے وہ. تو کبھی کبھی ایسا سوچ کے دیکھو، ڈاکٹر کو کاٹ ڈالو، حکیم کو کاٹ ڈالو، ابھی تمہارے سرنیم یا تمہاری ڈگری، تمہاری پیشے کے آپ نے مدبر رکھ دیا. یاد رکھ اتنا، بس ایک سوچ کے حساب سے، ایک ہلکا ایک مشق، ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ صرف آپ ایسا سوچ کے دیکھو، تمہارے گھر کے آنگن میں، تمہاری دروازے پہ تمہارے نام کے پیچھے مدبر لکھ دیا. تو زندگی کی مختلف جگہ سے، مختلف پیشہ والے، مختلف مقام کے مختلف لوگ تمہارے پاس آئیں گے، مختلف ایشوز لے کے. تمام ایشو کو اگر سپوز آپ کوئی تدابیر بتا سکتا ہے، ہم اس دن کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے تھوڑا بہت جانا، تھوڑا بہت ہے. تو یہ آ جائیں گے سب کے اندر تھوڑا سا تقوی، یعنی کہ ہوش بہت ہو، تھوڑا سا ہوش اور تھوڑا سا کامن سینس، تھوڑا سا ہوش اور تھوڑا سا کامن سینس. یہ دو چیز آپ کے پاس اگر ہے تو یاد رکھو، آپ ایک مدبر بن جائے گے انشاءاللہ. اوکے، کوئی سوال کیا جائے؟ دو تین سوال. ڈاکٹر ہاشمی صاحب، ڈاکٹر ہاشمی، ڈاکٹر ارشاد فاروقی. ہاں سلام سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے سر ڈاکٹر وہ، صاحب. ہاں سر، جو پری ڈائبٹک کنڈیشن ہوتی ہے، ہاں. مطلب جیسے گلائکوسیلیٹڈ ہیموگلوبین باٹر لائن پہ ہوتا ہے، ہوں. تو کوئی تجویز اور مطلب کہ اس چیز کو روکا جائے اور آگے نہ بڑھے اور فیوچر میں ڈائبٹیز ہونے کے چانسز کم ہو جائیں یا نیل ہو جائیں. یس ڈاکٹر صاحب، ابھی میں نے جو لیکچر یہ جو تھوڑا بہت آپ سے ڈسکس کیے، یس سر. کوئی بھی چیز کو تدابیر سے پہلے، تدابیر کرنے سے پہلے اپنے کو ایشوز ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیے، ہم نے ایک سٹیکر چپکا دیا ڈائبٹک. اس سٹیکر چپکانے کے بعد دماغ یہ ہم کو کہتے ہیں کہ دماغ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی تم جانتا ہو کیا چیز ہے، سٹیکر ابھی جاننے کی کوشش مت کرو. یعنی آپ کی نوئنگ کی جو کیوریوسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے جان چکے کہ ڈائبٹک ہے. اگر سپوز اسٹیکر نکال دیا تو اگر میں سمجھتا ہوں، اگر کل بھی جو آئے دو تین آئے میرے پاس جو ٹریننگ کے لیے دلی وغیرہ سے، میں نے ان سے پوچھے سوال، بھائی ڈائبٹک کا کس مرض یعنی ماہیت کیا؟ تو وہ بولا وہ شوگر کا، انسولین کا کم ہونا، شوگر بڑھے. ارے بھائی یہ تو ماڈرن کا نظریہ ہے. ایکچولی پہلے یہ دیکھو، ماہیت کے ذریعے ہی تو ہم اس کے تدابیر بتائیں گے. یاد رکھو، ڈائبٹک اس امراض رطوبی، یس سر. یہ امراض رطوبی کہیں نہ کہیں باڈی میں اگر پری ڈائبٹک ہو رہے یس تو سر. اس آدمی کے اندر رطوبت دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے، غیر طبعی طور پہ جتنا ہونا چیز کی باڈی میں رطوبت بڑھتے جا رہے. جی سر. اور ایک چیز یاد رکھو، زیادہ تر یہ بڑھتے جا رہا ہے، اتنا بڑھتے جا رہا ہے، وہ بھی سوچا کرو. کیونکہ انسان کی جو باڈی، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مطلب ایک جامد ایک کیفیت ہونے کے باوجود بھی، یعنی کلی طور پہ مٹی سے بنائے. ہاں سر. الگ الگ مخلوق جیسے شیطان کو آگ سے بنائے، تو انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن مٹی میں خشکی پنا ہے، انانیت ہے، بہت سارے کوالٹی اس کے اندر ہے. یس تو سر. یہاں اس کے ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی جزوی طور پہ جائیں گے تو انسان کی باڈی میں مور دین 75% واٹر ہے، یس یعنی سر. رطوبی ہے. جی سر. تو یہ رطوبت انسان کو پرانے زمانے کے، یعنی کہ آج سے 50-100 سال پہلے کا انسان سے زیادہ پرسنٹ کنٹمپرری ورلڈ میں انسان کو زیادہ ڈائبٹک کیوں ہو رہے ہیں؟ جی یہ سر.
हमारी एक सोच होना चाहिए, दवा देने के साथ में हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए कि भाई इसको मैंने दवा दे, ये एक एक सवाल करके गया मरीज, मैंने दवा तो दे दी, एक सवाल ये मरीज पूछा नहीं, लेकिन मरीज एक सवाल है मेरे लिए। जी सर। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए पिछले जमाने के मुकाबलतन आज के जमाने में बहुत सारे लोग वाकिफ है ग्लूकोज क्या है, मेटा क्या चीज है, वो कितनी नुकसानदेह, ये अनपढ़ आदिवासी भी जानता है। जी सर। खाने पीने की वजह से डायबिटिक नहीं होता, याद रखना। जी सर। खाने पीने से या खाने पीने की बेतरतीबी से अगर डायबिटिक होता तो बहुत सारे डायबिटिक लोग इतना पाबंदी इतना परहेज करते फिर भी उनकी शुगर कम नहीं होती। यस सर। बच्चा सवाल, आदमी की बॉडी में कुली तौर पे कहीं न कहीं रुतूबत की गलबे की वजह से बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हो, ग्लूकागोन हो, जो भी हार्मोन है जिसके अंदर थोड़ा बहुत खुश्की है, वो थायराइड, वो हॉर्मोन्स खुश्की से काम करते हैं, सख्ती से काम करते हैं। उसकी शक्तिपना, उसकी खुश्कीपना खत्म हो रहे हमारी बॉडी में उमूमी तौर पे रुतूबत बढ़ने की वजह से। जी सर। उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि एक आदमी अगर अच्छे खासे शुगर है, उसको आधा घंटा जिम में जाके या कोई कसरत करे या एक्सरसाइज करे, काफी हद तक बगैर दवा उसकी ग्लूकोज डाउन हो जाते। जी। उसकी साइंटिफिक हम क्या करते हैं कि कसरत से या एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वो मेटाबॉलिज्म से मुराद उसकी बॉडी में हरारत बढ़ना, क्योंकि जो आदमी की बॉडी में ज्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए, इस्तेहाला के लिए हरारत की जरूरत पड़ती है, जी सर। जो आदमी में हरारत कम हो गया उसी साथ साथ उसकी तहलील या उसकी बरूदत बढ़ने की वजह से शुगर बढ़ रहे। जी सर। इसीलिए ज्यादातर शहरी लोग को, आजकल देहाती लोग को भी आ गया, शहरी लोग को सबसे ज्यादा शुगर की बीमारी हुआ, जी सर। लेकिन आज गांव में रहने वाले को भी शुगर बढ़ते जा रहे कि वो शहरी लोग को कॉपी कर रहे। जी सर। अच्छे खासे काम करने वाले देहाती लोग भी मोबाइल हाथ में आ गए, ऐसा लगता है कोई उनको कोई मुजीजत हाथ में दे दिया, वो भी काम धंधा छोड़ के वो भी बैठना शुरू कर रहे हैं। जी सर। तो ये चीज याद रखो, अगर प्री डायबिटिक के लिए रोकने के लिए बेहतरीन चीज है जॉइंट, मफासिल। मफासिल में सबसे ज्यादा रुतूबत जमा होता है, याद रखना। कहाँ? अच्छा, हाँ सर, मफासिल में। मफासिल में सबसे ज्यादा रुतूबत जमा होता है। जो आदमी मफासिल को हरकत करना स्टार्ट किया, मसल्स को नहीं, मफासिल, ओके सर। अगर मफासिल को हरकत करना स्टार्ट किया, डायबिटिक नीचे आता है। यहाँ कैलिकट में एक डॉक्टर है, शायद डॉक्टर जॉन या वर्गीस कुछ से, वो 2-3 हजार पेशेंट देखता पर डे। ओके सर। तो आप सोचेंगे भाई 2-3 हजार 24 घंटे में, वो क्या करता है, एक बड़ा हॉल में, बड़ा ऑडिटोरियम में बैठता है, एक साथ 200-250 पेशेंट में अंदर लेके आते हैं, हाँ। और मरीज को बोलता है भाई आप सुबह उठने के टाइम पे पहले छोटा सा उंगली को मूवमेंट करो, फिर उसको ऐसा मूवमेंट करो, फिर आप इसको मूवमेंट करो, फिर आप शोल्डर को मूवमेंट करो, फिर आप मुंडी को मूवमेंट करो, पूरी की पूरी जॉइंट को मूवमेंट करने के लिए कहते हैं। और उसको बोलो तुमको रात में जितना लड्डू खाना खाओ, जिलेबी खाओ। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी बोल रहा है उसमें खाने में कोई परहेज नहीं, और 1 या 2 छोटा सा एक टैबलेट देते हैं, एलोपैथी ग्लाइसिफे जैसी कोई टैबलेट। दुनिया खुश क्योंकि वो सब खा सकता है, उसकी शुगर 200 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। जो प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, उसको उसको ये नहीं पता कि वो एक्सरसाइज के नाम से वो हर अंग मतलब उसको बोलते कि तुम छोटा सा इससे लेके ये चीज को स्टार्ट करके सुबह 1 घंटा, उसके अलावा कुछ नहीं। यस सर। अब रुतूबत याद रखने का, रुतूबत मसल में नहीं, ओके सर। रुतूबत अक्सर याद रखने का, कहीं पढ़ा होगा मफासिल का मिजाज क्या है। मफासिल में बलगमियत का होना जरूरी है क्योंकि वो हरकत के लिए बनाया है। यस सर। वहाँ गैर तबई तौर पे अगर रुतूबत जमा हो गया मफासिल में, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होता है, हरकत ऑटोमेटिकली, जॉइंट अगर इश्यू आ गया तो ऑटोमेटिकली मसल भी काम करना छोड़ देंगे, फिर आदमी के अंदर ओबेसिटी भी बढ़ते। तो याद रखो, मेरा कहने का मतलब खुश्की से इलाज करो। हार खुश्की से भी इलाज कर सकते हैं, बारिद खुश्की, दो आपके पास, दो खुश्की, एक हरारत की खुश्की, एक बरूदत की खुश्की।
اگر مریض صفراوی ہے تو سرد خشک تدابیر بتاؤ. اگر مریض بارد خشک بارد رطب ہے تو ہار خشک. یاد رکھو خشکی سے علاج کیا کرو. ڈائبٹک کا ٹریٹمنٹ میں خشکی. آپ اگر امرت کی پتا بھی بوائل کر کے پانی پیئیں گے, امرت کی پتا خشک ہے. جی سر. آپ اگر ناریل کی چھلکا بوائل کر کے پیئیں گے تو بھی آپ کے شوگر کم ہو جائیں گے. شوگر کی بیماری کا علاج نہیں ہائپوگلائسیمک ایجنٹ. شوگر کو کم کر سے تو یاد رکھو وہ ویدر ڈائبٹک اور پری ڈائبٹک خشکی کی تدابیر اختیار کرو باڈی میں. اس میں خشکی کی تدابیر میں آپ مدبر ہے سب سے اول نمبر میں حرکت. جی سر. اگر آپ کو پانی پینا ہو مٹکے کے پانی پلاؤ. جی سر. مٹکے کی پانی میں خشکی کی زیادتی اس لیے زیادہ پانی بوٹل میں یا پلاسٹک کی بوٹل میں یا آپ اسٹیل کی برتن میں یا آپ الومینیم کی برتن میں تانبے کی برتن سے زیادہ آپ اگر مریض کو بولو کوزے کی پانی پیا کرو مٹی کی صبح شام تو بھی آپ کی شوگر کم ہو جائیں گی. اس سے بھی خشکی بڑھتا ہے. اوکے ڈاکٹر. جی سر. دوسرا سوال یہ ہے سر, جیسا کچھ ادویات وغیرہ جیسا پینکریاس کے امپروومنٹ کے لیے فنکشن کے امپروومنٹ کے لیے کچھ ادویات ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں بہت سارے ادویہ جس کو فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری فورتھ ڈگری سرد خشک اور گرم ہوتا ہے سر کو مطلب جینیٹیکلی ہوتا ہے موروثی مرض ہوتا ہے ان کے لیے سر. دیکھو بھائی موروثی کا ٹریٹمنٹ الگ ہے. وہ آپ کو کچھ جگہ پہ آپ کو علامت ہی کر سکتے. کبھی کبھی جینیٹیکل اگر امراض خلقی یا امراض موروثی امراض جس کو کہتے جتنے بھی سرد خشک دوا ہے جی سر. جامن ہو پٹکری ہو گیرو ہو ملتانی مٹی ہو یا سادہ مٹی ہو افیون ہو یا ہاں. نرکچی ہو. کل گروپ میں ایک آدمی ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک میسج بھیجا ہیلتھی وے میں یا کوئی گروپ میں سر ابے پیچش اور کرس کسا گاؤدندی ہائپوگلائسیمیا کریٹ کرتا ہے کیا پوچھ کے اچھا جبکہ سر. اس نے کسی کو اب کرس کشتا گاؤدندی یا پیچز دینے سے شوگر کم ہو گیا. جی یہ سر. دونوں میں خشکی ہے. جی سر. پیچش میں خشکی ہے, جی سر. جی ببول سر. میں خشکی ہے, ببول کی چھال میں ببول کی پتے میں ببول کی گود سب ڈائبٹیز میں اس لیے استعمال کرتے سب باڈی میں خشکی کریٹ کرے. جتنا خشکی کریں گی تو آپ کی جو انسولین ریسسٹینس کم ہو جائیں گی اور شوگر انٹرا سیلولر اسپیس سے اور انڈر سیلولر اسپیس سے وہ چیز شوگر اندر داخل ہو جائیں گی اور خون میں شوگر نہیں ملے گی. ڈاکٹر جی سر. سر آخری سوال سر, ایک آخری سوال سر, مزاج بدل سکتے ہیں کسی کا مزاج اگر مطلب جیسے کہ کوئی بلغمی مزاج ہے ہم کچھ کہ اس کا مزاج بدل جائے کچھ تدابیر کے ذریعے کچھ ادویات کے ذریعے سر. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے ایک ہاتھ میں آگ دیا جی سر. وہ آگ کو آپ بدل سکتے ہیں کیا؟ نہیں سر. وہ جواب دیجیے سر. نہیں سر. کیوں نہیں؟ ہاتھ سر کیا بولا سر آپ نے؟ ہاں بول رہا پہلے نہ بولا پھر ہاں بولا. نہیں نہیں سر. سنو ہاں. آپ کے ہاتھ میں ایک انگار دیا, جی جی انگار ہاتھ میں جی نہیں مطلب آپ کے پاس ہے, جی جی کیا اس سے آپ نہیں لگا سکتے کیا پھونک پھونک کے؟ لگا سکتے. ہاں آپ بہت سارے آگ لگے آپ کے پاس, کیا نام اس کا فائر سروس آیا, آپ کو جا نہیں سکتے, بجھا سکتے سر. بجھا سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ چینج کر سکتے مزاج کے چینج کر تبدیل. سکتے, تدابیر چاہیے. جی سر. لیکن ایک ہاں. فنڈامنٹل کوالٹی جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے کم ہو سکتے ہے زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا سر. جیسے عمر کے حساب سے کبھی بچپن میں بہت شرارتی ہوتا ہے جی لیکن سر. آدمی جو بوڑھا ہوتا ہے بہت سنجیدہ ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے. وقت ہے, موسم ہے, غذا ہے, ماحول ہے, اس کی جو دوستی ہے, اس کی عبادتیں ہیں, اس کی عبادت بہت حد تک اس کے اندر چینجز آ سکتے. اوکے ڈاکٹر, تھینک یو. نیکسٹ ڈاکٹر بشرا کاشف. وعلیکم السلام. میں بول رہی ہوں رامپور سے, آیا کی ممی.
बहुत सारे लोग का माइक ओपन है इसलिए वाइब्रेशन हो रहा अच्छा सर, सलाम सर, काम करना चाह रही हैं आप? है। हाय अस्सलाम वालेकुम, हाय हाय। हाँ, ये सब सर अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे सर भी बहुत सलाम प्यार करना चाह रहे हैं करती हैं ना। माशाल्लाह, ये रामपुर की खुशबू जा रही है सर, लखनऊ के बाद रामपुर की सर। ये लो। डॉक्टर कासिम, हार्ट बनाई। ये तो अपना डॉक्टर हीरो है, कासिम, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये सर, ये लोग, ये अपना हीरो है। जी जी जी। सर ये बात करती है तो इनके अल्फाज होते हैं कि मेरे सर। मेरे सर आपका। सर, चलो ठीक है, अब आप जाइए। मेरा क्वेश्चन था सर, एक पेशेंट है 38 ईयर्स की सर, 9 ईयर्स उसकी शादी को हो गए लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं है उसके पास। तो समझा और मेरा सर? सर कोई बच्चा नहीं है उसके पास अभी, ओके ओके, एज और 5 से 7 की पुरानी उसकी रिपोर्ट्स हैं सर। तो उसमें उसको बायलेटरल उन्होंने ब्लॉकेज दिया, ट्यूबल ब्लॉकेज, और यूट्राइन सिस्ट राइट साइड। और सर उस बहुत देखने में तो वो बलगमी सी लग रही थी, लेकिन जब ओके बात की तो मतलब उसके अल्फाज थे कि मतलब लगता है कि हार्ट हीट मतलब एकदम भरी पड़ी है बॉडी में जैसे। ओके, फाइन फाइन फाइन। तो उसमें बाकी पार्टनर का, मेल पार्टनर का कोई इश्यूज नहीं है? अभी सर उसकी रिपोर्ट थी नहीं, मैंने उससे कहा है करवाने के लिए। ओके। कभी कभी क्या होता है, मेल और फीमेल पार्टनर्स को दोनों जांचना जरूरी इसलिए होता है कि कभी कभी जो मेल को बहुत जल्दी हम डायग्नोसिस कर सकते, जस्ट गो फॉर आई मीन सेमिन एनालिसिस को भेज डालो तो विद इन एक ही रिपोर्ट में समझ में आता है कि दैट पर्सन इज इम्पोर्टेंट या उसके अंदर इम्पोर्टेंस के साथ प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि आदमी को जांचना बहुत इजी है क्योंकि मोटिलिटी और काउंट डिफरेंस, बाकी इतना देखना है कि इसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं, तो चीज अगर परफेक्ट है तो आदमी की जांच खत्म हो गया। ओके, जी जी बेसिकली फीमेल के अंदर फीमेल की जो पीरियड और उनकी इश्यूज इज कनेक्टेड टू मेनी हॉर्मोन्स, जी जी और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी फीमेल में आ सकते हैं, फंक्शनल डिफॉर्मिटी भी आ सकते हैं, क्योंकि आदमी के अंदर फंक्शनल डिफॉर्मिटी बोले तो इम्पोर्टेंसी और सॉरी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी बोले तो इम्पोर्टेंसी से रिलेटेड, और फंक्शनल या ये तो फीमेल के अंदर कभी कभी अक्सर हम लोग जो स्कैनिंग करते हैं या ट्यूब पैटर्न सी चेक करते हैं डाई को निकाल के या एक्सरे के जरिए, कभी कभी ये जरूरी नहीं कि ब्लॉकेज हो, या कभी ब्लॉकेज न होने के बावजूद भी उसको होता है। एक एग्जाम्पल ये है कि भोपाल में एक बीएमएस डॉक्टर है, भोपाल में बीएमएस डॉक्टर का वो 10 साल हो गए थे शादी होके मेरे पास भेजा, तो मेरे पास कॉल किया, मैं बोला डॉक्टर साहब वो दोनों ब्लॉक एज पर द रिपोर्ट ट्यूबल ब्लॉकेज है, वी कांट डू एनीथिंग, हम उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते, वी कांट डू। तो उसने बोला नहीं नहीं सर आप अपने हिसाब से कुछ दवा दे दी, तो मैंने दवा दिया, वो क्या दिया था मुझे नहीं मालूम, मैं भी 10 साल पहले या 15 साल पहले बच्चा शायद आपने 5 बताया था कि माजून हाँ रबीदुल वक्त बताया था आपने। हाँ, तो वो एक्चुअली हो गया, तो मैं उस बात को अभी ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन की वजह से अडहेशन तो नहीं या कोई दूसरी वजह से अगर ब्लॉकेज है तो भी कभी कभी रिकैनालाइजेशन हो जाता है। इसमें आपको जानना जरूरी है कि अगर सपोज मरीज सौदावी या सफरावी है, दोनों में खुश्की का गलबा है, और मरीज अगर बलगमी और दमी है तो रिकैनालाइजेशन का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इत्तिसाल की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सफरा के अंदर और सौदा के अंदर खुश्की होने की वजह से तफर्रुक यानी कि तोड़फोड़ यानी कि टुकड़ा होना, अलहदा होना, रूट जाना या रुक जाना, ये प्रॉब्लम होते हैं। अब जब अगर रुतूबत अगर कहीं भी है तो जोड़ने की सलाहियत ज्यादा है। तो आप एक काम करो, इसमें एक अब्बे तिनकार 2BD ऐड करो, आपने जो अगर दिया दवा अब्बे तिनकार और देबीतुल और अभी राइट नाउ स्टार्ट करो, और एक जवारिश कालोंजी, उनको ये बोलो अभी मैं तुमको कंसीव होने के लिए दवा नहीं दे रहा है, यू जस्ट स्टार्ट दिस मेडिसिन फॉर 2 or 3 month रेगुलरली, इवन दो पीरियड आओ या ना हो, कुछ में कोई मतलब ही मत, उनको ये कंटिन्यूशन रखो। तो कभी कभी याद रखो
ایک بائیلیٹرل ایک بائنری ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرو. میری مریض کو اگر سپوز اوولیشن سے یا میں اس کو خشکی سے علاج کروں کیا میں اس کو تری سے علاج, یہ دو کانسیپٹ لے کے چلو. یا میں اس کو گرمی سے علاج کروں, اگر اس کو سردی سے علاج کرو تو آپ کو تھوڑا کنفیوژن آئیں گے, کیونکہ گرمی سے تری بھی آ سکتے, گرمی سے خشکی بھی آ سکتے, تو آپ کو کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ سیکنڈ آپ مفعول سے علاج کرو. میری مریض کا ایشوز تری سے تو نہیں یا خشکی سے نہیں, تو اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں گے بھائی اس کو مجھے تر پہنچا یا اس کو تری کو کم کر, یہ اسپیکٹ لے کے علاج کرو. دیکھو, جی سر. تھینک یو. ڈاکٹر ایاز الدین بہرائچ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ ہم صفرا کو یا کسی بھی خلط کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں مرکبات کی, تو کیا سر جو مفردات ورک کرتی ہیں کیا مرکبات بھی ویسے ہی ورک کرتی ہیں؟ جیسے صفرا کو اگر ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, اعتدال میں لانے کے لیے مفردات کے لیے لکھا ہوا ہے کہ 3 دن آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو جا کے صفرا صحیح اعتدال میں آتا ہے. اور یہی جب ہم جوارش تمر الہند یا شربت تمر الہند یا آلو بخارا وغیرہ استعمال کرتے ہیں سر, تو اس کے اعتبار میں ہم کتنے بھی دن استعمال کرواتے رہتے ہیں؟ چونکہ مریض آتے ہیں سر, ہم دیتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صفرا کا مریض ہے تو 15 دن سے کھا رہا ہے, 20 دن سے کھا رہا ہے, ٹھیک ہے سر. تو یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر صفرا کو اعتدال میں لانے کے لیے مفردات کی جو بکس ہیں سر اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کافی ہوتے ہیں یا 5 دن میکسیمم دے دیا آپ نے, لیکن جب مرکبات ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ کتنے دن دیں گے اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ایک اچھی سوال پوچھا, مطلب کیوریوسٹی کے حساب سے. دیکھو خاص طور سے جو صفرا کی تعدیل کے لیے مسکنات کے لیے, کیونکہ صفرا کی اور جو ایشوز ہوتے ہیں زیادہ تر ایکیوٹ ایشوز ہوتا ہے, یعنی کہ 1 2 3 4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ زیادہ تر جگہ پہ لکھا کبھی کبھی صفرا کے ایشوز صرف اجامہ سے بھی صحیح ہوتے, یاد رکھنا صرف اجامہ سے بھی, یعنی کہ خون کی عدت کو کیونکہ صفرا آلریڈی گرم ہے, وہاں آپ کو نزول دینے کی ضرورت نہیں, پکانے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں. جبکہ بلغم کو سودا کو پکانے کے لیے ہم مسلسل 14 دن 40 دن منزید مسل مقویات تنقیہ دے کے ہم علاج کرتے. لیکن کبھی کبھی صفرا کا ایشوز یہ رہتے کہ صفرا کے اندر اتنی لطافت ہے, وہ اتنا چسپان رہتا ہے کئی جگہ پہ, اس کے مکمل طور پہ باہر آنے میں کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں آپ کے پانی گر گیا, اوکے, آپ نے جلدی پوچھ ڈالا, ایک جگہ پہ گیسلیٹ گرا, سپوز گیسلیٹ یا مٹی کا تیل یا کیروسین, آپ پوچھ کے دیکھو کپڑے سے, پوری کی پوری پھر آتا ہے نہیں, پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ چسپان رہتا, کیونکہ اس کی حدت کتنا ہے وہ کس کا آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا میری بات, یعنی کہ کیروسین کی حدت لطافت اتنی حدت سے کہ وہ قوت نفوذ کے ذریعے جلدی کہیں نہ کہیں وہ سرایت کر جاتے چھوٹی چھوٹی چیز تک. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے جیسے بھی آگ شروع ہو رہے, جیسے ابھی کئی جگہ پہ آگ شروع ہو رہے تو آپ ہاتھ سے بجھا سکتے اس میں, اوکے, یعنی سرد خشک کیفیت سے آپ کو بجھا دیا. اگر آپ آگ زیادہ ہے تو آپ کی ہاتھ جل جائے گی, وہ تدابیر ابھی کام نہیں کر رہے. یا سمجھے کئی جگہ پہ آگ آ رہے تو آپ نے ایک پوری کی لکڑی کی گڈی, بڑا گڈھا یا گڈی اس کے اوپر ڈال دیا تو آگ بجھ جائے گی. اگر آگ زیادہ ہے تو اس کے اوپر لکڑی کی گڈھا ڈال کے دیکھو, لکڑی بھی جل جائیں گے. یعنی کہ یہاں کمیت اور کیفیت کا بھی ایک مسئلہ یاد رکھنا, اس فلسفی میں کمیت اور کیفیت کا بھی ایک مسئلہ ہے, سمجھا. کیونکہ صفرا کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا, صفرا سب سے لطیف, سب سے طاقتور, سب سے کم نہ دکھنے والی, سب سے اوپر, سب سے اعلیٰ مقام ہے اس کا. اسی لیے شیطان نے ہم سے
आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने में रोका, इसलिए कि मेरी कुव्वत सौदावी कुव्वत से ज्यादा है। आदम की कुव्वत, आदम को बनाया मट्टी से, और मेरी कुव्वत जो है ना आग है, मैं झुक ही नहीं सकती। तो अल्लाह ने बोला कि मैं, मेरी रूह फूका है। तुम नहीं जानते आदम के बारे में, लेकिन तुम लोग नहीं जानते, उससे ज्यादा मैं जानता हूँ इंसान के बारे में, क्योंकि उनकी रूह है, अल्लाह की रूह हमारे अंदर। सिर्फ वो बनावट की नहीं, बनावट के हिसाब से देखा है तो सौदावियत है हमारे पास जिन्नात की, और इनकी कोई ताकत ही नहीं होना। इनकी जो रफ्तार है भागने की, चलने की जो रफ्तार है आग की, उसकी एक 0% भी हमारे पास नहीं, फिर भी ताकत हमारे पास है। तो मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं एक मिसाल बता रहा हूं। सफरा को आपको निकालने के लिए, सफरा की सरायत करने के बावजूद होने वाली असरात ज्यादा रहता है। मिसाल के तौर पर अर्टिकेरिया भी कैपिलरी डायलेटेशन, कैपिलरी डायलेट कर रहे हैं, या परप्यूरा हो, अर्टिकेरिया हो, एकाइमोसिस हो, ये सब चीज सफरा का ही काम है। खाना खाए फौरन आ गया, आपने सेट्रिसिन खा लिया या आपने एंटीहिस्टामिन खा लिया, फौरन रुक जाते सफरा के, मतलब ये जो जालिमाना हरकत, तो खत्म हो जाते। कभी कभी क्या होते, जैसे उल्टी है, या आपको कुछ शियान हो या गलियानी हो, या ये सब चीज सफरा की थोड़ी आगे जाने की काम है, वो भी एक दो दिन में खत्म हो जाते। लेकिन कुछ चीज ऐसा रहता है कि वो सफरा के अलामत की सीक्वले का मतलब वो खत्म करके जा चुके, अब उसकी तदाबीर सफरा से नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी को सेरिब्रल हिमरेज हो गया, आपकी ब्रेन फट गया, आप पैरालिसिस हो गए, यूनानी के एतबार से वो अमराज बलगमी है, यानी आसाबी अमराज है। हुआ एक सफरावी असर, क्या हुआ? ब्रेन रप्चर हुआ, तफर्रुक हुआ। बलगम कभी तफर्रुक क्रिएट नहीं करता है, सफरा से शुरू हुआ ब्रेन में, और वहां डेड हो गए, इन्फाक्ट हो गया। अब सफरा की तदाबीर करके कोई फायदा नहीं। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? वहां रुतूबत को वापस करके वो इन्फार्ट को खत्म करना नहीं, वो मरा हुआ एक्सेल को वापस लाना है। अगर आप गर्म दवा इस्तेमाल कर रहे हैं बलगमी को छोड़ के, मजीद उस मफलूज पेशेंट को तकलीफ दे रहे तुम, क्योंकि वाकया हो चुके, सबब जो वाकया हो चुके, अभी वो वाकया के बाद में सेकेंडरी टर्शरी चीज की तकलीफ दे के अगर पेशेंट ना रहे, तो वहीं से वापस स्टार्ट करना पड़े। कभी जरूरी नहीं कि इसको एंटी सफरा ट्रीटमेंट अभी जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी आप उठा के देखो वायरल इश्यूज में, वायरल फीवर आ गया डॉक्टर साहब, बुखार आ गया, चले गया, लेकिन बुखार के बाद में जो मुझे खांसी स्टार्ट हुआ, 6 महीने से खांस रहे, मेरी खांसी नहीं जा रही, ये सफरावी इश्यूज है। क्योंकि सफरा अपना काम करके छोड़ गया, अपनी खांसी की वजह से उसकी यबूसत की गलबा लंग्स में। अब आपको सफरा को ट्रीट करने के लिए अगर गर्म खुश दवा नहीं है, अभी उसको तर चाहिए, उस तरी में आपको सेलेक्ट करना है, मुझे सर्द तर चाहिए कि गर्म तर चाहिए। अगर आपकी मरीज गर्म तर है तो उसको सर्द तर। यहाँ आपकी ये अभी ये मैं लाइन बता रहा, ये लाइन आपको पकड़ना है, या 2 लाइनें सफरा को तोड़ने के लिए, 2 लाइनें, सर्द तर भी है, गर्म तर भी है। क्योंकि आप अभी तोड़ने जा रहे तरी से, फाइल से आपको कुछ लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि फाइल वो काम करके चले गया। अब वो फाइल की वजह से होने वाले मफूल में प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ रहे होगा? कंफ्यूज तो नहीं? सर कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, नहीं समझ में आ रही। उस्ताद लोग का काम रहता है कंफ्यूज कराना है। अगर कुछ समझ में नहीं है तो सामने वालों को कंफ्यूज कराना। मैं सीधा साधा बोलता हूँ आपको। सर अभी आपने जो आप ये तदाबीर के लिए याद रखो एक चीज में, चलो मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं आपको छोटा डायरेक्ट आंसर देता हूँ। आप जिगर का इस्लाह किया जाए, बाकी कुछ मत करो, ओके? यानी फॉर एग्जाम्पल अब्बे कबीर नौशादरी का मिजाज क्या है?
गर्म है वो। याद है सर। फिर जिगर का इस्लाह करो, आप कभी नौशादरी दो, या फिर आप वो अगर उसकी इश्यूज के अंदर और थोड़ा फिजिक्स देखो, उसकी साइन एंड सिम्टम में अभी भी सफरावियत की अगर गलबा है तो जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां रोको, क्योंकि आपने स्टिल अगर सिम्टोमेटिक उसको तस्कीन दे रहे तो आपने जो बताया थोड़ी देर आराम होंगे, बाद में फिर वो तकलीफ बढ़ते जाएंगे। तो गो टू लीवर, ओके, जिगर का इस्लाह करो। खाली सर कुछ मेरा ओके सवाल ये डॉक्टर? नहीं था सर, मेरा हाँ। सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि हम मुरक्कबात को और जैसे मुफरदात को सर हम केवल 3 से 5 दिन इस्तेमाल करते हैं। सर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सफरा 1 लाख का नाम दिया, और ऐसे बलगम के लिए 9 दिन का इस्तेमाल करते हैं, फिर सौदा के लिए 15 दिन का, जो भी है सर। तो यही, लेकिन जब हम मुरक्कबात इस्तेमाल करते हैं तो हम दिन मुतय्यन नहीं करते हैं। मेरा सवाल ये था सर। और सर इसकी जो आपने, प्रॉब्लम आपको एक चीज बताओ, मैं यहाँ जी सर, ज्यादातर मुरक्कब के अंदर मिसाल के तौर पे फिलफिल दराज जी सर, अगर है, या फिलफिल सिया है, या कोई भी एक ऐसी चीज जो सफरा को छेड़ने वाली अगर कोई दवा है तो कभी कभी उसको नुकसान देता है। कोई भी मुरक्कबात में अगर कहीं ना कहीं सफरा को वापस छेड़ने वाली जरा भी अगर, तो इसलिए ज्यादातर कोशिश करो, मैं समझता हूँ मेरी तजुर्बे के मुताबिक, अगर आपको ज्यादातर ये कोशिश करो कि मुफरत या 1 और 2 दवा जिसके अंदर आप पक्का आपको मालूम इसमें सर्द खुश्क है या सर्द तर है, ऐसी दवा अगर इस्तेमाल करेंगे तो कम वक्फे में आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं, वरना मुरक्कब में आप कंफ्यूजन रहेंगे। जी सर, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल किस्मेसी धनिया सर्द खुश्क के फर्स्ट डिग्री सफरावी में भी काम करते हैं, वही चीज ठंडे में भी काम करे, यानी सुदाए बारिद और सुदाए हार में दोनों में ट्रिपल किस्मेसी काम करते हैं, क्योंकि वो डिग्री फर्स्ट डिग्री में। और रहा सवाल मिजाज की, आप रहनुमाए अकाकीर, बुस्तानी मुफरदात, जड़ी बूटी इंदो पाकिस्तान, सफीदीन के किताब, नजमुल गनी की किताब, रहनुमाए अकाकीर, खजाइनुल अदविया, कुछ भी उठा के देखो, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग मिजाज लिख के रखी है। फॉर एग्जाम्पल उशबा बेहतरीन मुस्तफी खूनों में, सफरा को तोड़ने में अव्वल नंबर में, लेकिन यूनानी में उसको गर्म लिखा है, आयुर्वेदिक में इसको ठंडा लिखा है, शीत यानी कि गर्मी के मौसम में उशबा की शरबत पीते हैं गांव में हमारे, यूटीए के लिए उशबा की शरबत पीता है, पूरी गांव में बनता है उशबा की, क्योंकि हमारे गांव में जंगल में बहुत होते हैं उशबा की शरबत बनता है, बहुत खुशबूदार रहते हो, क्योंकि जैसे गर्मी स्टार्ट हो गया तो उशबा की बोलते सरसपरीला, बोलते इसको सरसपरीला की शरबत पीता है, पेशाब की जलन को, यूटीआई में पेशाब को लाल पीलापन हटाने के लिए, पेशाब को वाइट करने के लिए, बॉडी की हिद्दत को, सफरा को कम करने के, और हमारे यूनानी में उसको सेकंड डिग्री गर्म खुश्क लिखा है ज्यादातर किताबों में। तो याद रखो, मैं हमेशा कहते हैं मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं गलत हो सकता है, मेरी सोच गलत हो सकता है, ओके, तुम तुम्हारी सोच से ट्रीट करो। इब्न सीना, ये जरूरी नहीं कि जो भी इब्न सीना लिख के गए 100% परफेक्ट हो। इब्न सीना अपनी मुशाहिदा और तजुर्बे के आधार पर किताब लिखी, जालिनूस ने, राजी ने, सब लिखे, कुरान थोड़ी है, इसमें इस्लाह नहीं हो सकते, इस किताब में इस्लाह है बिल्कुल नहीं हो सकते। अरे भाई, इतना बड़ा असातिज़ा, इतना बड़ा हुक्मा, इतना पुराने हुक्मा, उस दौर में इतना कॉन्शियस नहीं था, अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपने तजुर्बे को किताब में मुजर्रबुल मुजर्रब, नादिरुल वजूद, नायाबुल नायाब, नुस्खाबुल की लिखा होगा। आज के इंसान अब जब सोचता है कि वो नहीं कहीं ना कहीं इस तकवे की कमी की वजह से, अक्सर आप देखते हैं रिसर्च में सैंपल साइज बोल के एक चीज होता है। व्हाट इज सैंपल साइज? मिनिमम 30 या 60 100 पेशेंट के ऊपर आपने तजुर्बा किया, उस रिजल्ट को एक स्टैंडर्ड रहते हैं। अगर मैंने किसी मरीज को किडनी स्टोन की दवा दिया या कोई दवा दिया, उसका स्टोन निकल गया, अगर सपोज वो मर्ज इन्हितात में था, नीचे खत्म हो रहा था, वो टाइम पे मरीज मेरे पास आए और वो
वो पत्थर खुद ब खुद यूरेटर तक पहुंच गया होता, सपोज मैंने पानी भी अगर वो टाइम पे दे दिया, वो पानी से उसका पत्थर निकल जाएंगे, मैंने लिख के रखे मेरे हाथ से पिए हुए पानी की वजह से इसकी स्टोन निकल गए, मेरे हाथ में बहुत सारा शिफा है, ये मेरी तजुर्बा है। तो याद रखना कि कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स, कभी कभी अपनी दिमाग अपनी बनी हुई जो फिलोसफी साइंस से हटके भी कभी कभी सोचा करो, ये है टिप। डॉक्टर थैंक यू। जी सर। सर अभी आपने एक बात कही थी शुरू में, तो उसको सर जैसे मैंने पढ़ा है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, कि जो आपने कहा कि कभी कभी सफरावी जो मर्ज होता है वो हम कपिंग करने से भी ठीक कर लेते हैं। सर जैसा कि मैंने बुक में पढ़ा हुआ है सर, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी अमराज मुरक्कब होते हैं तो उसमें जब ये कभी भी जैसे सर ये सफरावी होते हैं वो अहमर कहलाते हैं सर, और जो दमवी होते हैं वो फलगमूनी कहलाते हैं। तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर अगर सफरा के साथ ये खून भी है, दम भी है, तो आप दम के इस्तेफराक के लिए कपिंग कर देंगे तो आराम हो जाएगा। लेकिन यही अगर सफरा के साथ पे और दूसरी सफरा के हावी है दम के ऊपर, तब सर कपिंग से मुश्किल है आराम मिले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे जो मर्द सर बुक में सर साफ साफ लिखा, मैं भी फोटो डाल दूंगा बुक ग्रुप में, उसमें ये लिखा हुआ है सर कि कभी भी कोई भी मर्ज वो एक नहीं होता है सर। वो या तो जो है सफरा जो है दमवी होगा हार के एतबार से, और या तो दमवी सफरावी होगा या सफरावी दमवी होगा सर। तो जो कपिंग का फायदा मिलता है वो दम के एतबार से ज्यादा मिलता है, ना कि सफरा के एतबार से। मतलब ये मैंने पढ़ा है सर। सब ये बहुत इजीली आप उसका इसका जवाब आपको मैं कैसे दे सकता हूँ, देखो सुनो। जी सर। खिलते दम अलग है, दम अलग है। ओके, खिलते दम अलग है, दम अलग है। खिलते दम से मुराद है रियल बारी हार रतब मिजाज की कोई भी चीज को हम खिलते दम के डब्बे में डाल सकते। अब फॉर एग्जाम्पल अभी आजकल जो बारिश गिर रहा है, कभी कभी गैर मौसम में कभी बारिश गिरता है, तो अक्सर हम लोग के रिजल्ट साइंस के हिसाब से क्या कहते हैं कि फला ने मतलब जी गुजरात की समुद्र के किनारे में, लक्षद्वीप की समुद्र के किनारे में या केरल में थोड़ा साइक्लोन चालू है। साइक्लोन का अलग अलग नाम से कतरीना कितरीना अलग अलग नाम से, एक मकामी तौर पे एक छोटा सा, जैसे हमने सैटेलाइट पिक्चर जब देखेंगे जैसे जो कालावस्था जो कहते, तो उसमें हमको दिख गया था कि हवा तेजी से एक जगह पे एक मकाम के घूम रहे, उस एक मकामी तौर पे एक नेगेटिव प्रेशर एक साइक्लोन क्रिएट होने की वजह से पूरी की पूरी कर्नाटका, केरला, आंध्र, तमिलनाडु की जितनी भी बॉर्डर पे गैर तबई तरीके से बारिश गिर रहा है। सुनो, गैर तबी बारिश गिर रहा है। वो गैर तबई बारिश की वजह उस जगह पे हवा के अंदर पाए जाने वाले एक अलग अनासिर है, वो हवा के अंदर पाए जाने वाले एक नेगेटिव प्रेशर की वजह से एक छोटा सा मकाम में तकरीबन समझो 100 मीटर की दूरी पे एक साइक्लोन एक बावर क्रिएट हुआ, वो पूरी की पूरी एरिया की माहौल को चेंज कर डाला। एक प्रिंसिपल ये भी है हिजामा का, हिजामा कहीं भी करने से, कहीं भी खून निकालने से कोई फायदा नहीं। हिजामा जहाँ जिस मकाम में आपको नेगेटिव प्रेशर अगर क्रिएट किया तो पूरी की पूरी बॉडी की माहौल में वो एक गैर तबई किस्म की तब्दीली लाता है। भले आप बहुत सारे साइंटिफिक पेपर आ गया, एक कॉमन एक रिजल्ट ये भी है कि मकामी तौर पे आप एक तहरीक क्रिएट करेंगे, उसमें तमाम खिल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझा, सिर्फ दम्बी नहीं, तमाम खिल को भी उसमें तहरीक मिलता है और एक जगह पे वो इकट्ठा हो जाते हैं। समझा, तो उसी वजह से इस जगह पे लिखा है कि हिद्दत को मकामी तौर पे सपोज एक जगह पे साइक्लोन आ गया तो बारिश गिर के चले गया, क्योंकि बारिश गिरे, बारिश रतब, इश्यूज कहाँ से शुरू हुआ, हार रतब यानी हवा से, और जमीन तर हो गया, जमीन क्या खुश्क है, तो एक जगह से स्टार्ट होके वो तमाम अनासिर से कनेक्टेड है वो। तो भले आप एक जगह पे अगर आप दम के जरिए भी एक हैजानी कैफियत अगर लाना चाह रहे बॉडी में, 100% वो इफेक्ट सफरा में भी पड़ेंगे, बलगम में भी पड़ेंगे और सौदा में भी पड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ, लेकिन हम वक्ती तौर पे ये कहते कि ज्यादातर जैसे अभी
फसद का जो जिक्र है किताबों में, इजामा का यूनानी की कोई भी किताब में, यूनानी की किताब में कहीं इजामा आई नहीं, याद रखो। यूनानी की कोई भी जो क्लासिकल जो हमारे किताबों में, मतलब हमारी जो कॉलेज की किताबों में कहीं इजामा आजकल ऐड आ गया होगा, ज्यादातर किताबों में फसद बासलिक, फसद कैफाल, फसद का जिक्र है, इजामा कहीं नहीं। इजामा आजकल हमने ला लिया अपने आप को माइलेज लाने के लिए, अपने आप को वो इस्लामिक मेडिसिन है या हमारा है, सब एक अलग बवाल क्रिएट करके रखे, याद रखना। वो भी हर जगह आंख में कान में सब इजामा करते, सब गलत है। इजामा का पॉइंट होना चाहिए जहाँ आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तब आपको पूरी बॉडी में इसका असर होगा, वरना सिर्फ आपका 250 ml या 10 ml ब्लड आपके बॉडी से चले जाएंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर तौसीक रजा, डॉक्टर तौसीक रजा। हाँ यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम सर एक 13 साल की बच्ची है सर। तो उसको यानी कि एपिलेप्सी यानी इशारा, तो सर हमको पता करना है सर कि उसका मिजाज क्या है सर, इस बीमारी का मिजाज क्या है, यानी कि ये बलगमी है या सफरा भी है। जैसे जैसे सर लकवा तो सर बलगमी मादा जमा होने से सब होता है सर, तो ये सर ये क्या है सर? ये डॉक्टर साहब हमेशा याद रखना, मैंने अक्सर हर बार कहते हैं कि सवाल परफेक्ट होना चाहिए। आपने सरा या समझो एपिलेप्सी, एक चीज आप जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे वो आपकी दिमाग में आते, एपिलेप्सी का मतलब जमीन पे गिर के फड़फड़ाना या कोई गैर तबई हरकत करना, ये हमारे दिमाग में एपिलेप्सी है। हकीम के जबान में ये एपिलेप्सी नहीं है। ये एक हमको समझने के लिए जो भी आदमी जमीन पे गिर पड़े और उसके हाथ में वो हिल रहा है, गैर तबई पड़ रहा है, तो उसको हम एपिलेप्सी, सीजर, फीड्स या कुछ भी मुसीबियान जो भी नाम रख के हम लोग एपिलेप्सी की सवाल कर रहे हैं। एपिलेप्सी में होता क्या? एपिलेप्सी के अंदर बॉडी में कैफियत में क्या क्या चेंजेस हो रहे, वहीं से स्टार्ट करो तो सवाल भी आसान हो जाएंगे, समझना भी आसान है। मिसाल के तौर पे सब लोग को मालूम है इंसान की बॉडी में वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है 30 मिली माइक्रोन वोल्ट, ऐसा कुछ कहते हैं। एक नया साइंटिस्ट का कहना है इंसान की बॉडी में कितनी ट्रिलियन सेल है और हर सेल के अंदर 30 मिली माइक्रो वोल्ट एनर्जी है। अगर ये सब एनर्जी को कोई आदमी एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए तो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कर सकते कि पूरी एक शहर की बल्ब जला सकते, कहते। वो छोड़ो, मैं एक मिसाल बता रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि इस समझो गैर तबई तौर पे आपकी बॉडी में हरारत बढ़ने की वजह से जो गैर तबई हरकत जो होती है इंकिबासी और जो भी इंतसाती, उसी से होने वाली एक कंडीशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो इसमें हमको ये देखना है कि इसमें कौन सी खिल्त का दखल है, बलगमी एक है, दमी एक है, सौदावी एक है, सफावी एक है, छोड़ो ये अगर कंफ्यूजन हो रही, सिर्फ इतना पकड़ो ये बीमारी ये बूसी एक है, दमी रुतूबी एक है। ये बूसी तो है ही नहीं, क्योंकि हमने अक्सर मुसक्किनात, मुनव्विमात, मुखद्दिरात दवा देते एपिलेप्सी को रोकने के लिए। क्यों? सर्द, एक्सट्रीम सर्द खुश्क दवा से उसकी तमाम इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है सब जगह के बंद कर डालते हैं खुश्की के जरिए। तो ये साफ साफ जाहिर होता है ये अमराज खुश्क नहीं, अमराज रुतूबी। अब अमराज रुतूबी में क्या दुनिया भर की चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों में उम्मू सिबियान क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे के अंदर रुतूबत की गलबा की वजह से होता है। जवान एज में थोड़ा सा रुतूबत रहते हैं। देखो 40 के बाद में, 60 के बाद में बहुत ही कम एपिलेप्सी होता है। अगर कोई ब्रेन इंजरी हो, ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन एब्यूज हो, आप कहीं देखें कि बूढ़े लोग जमीन पे गिर पड़ के एपिलेप्सी नहीं होता है, क्योंकि वो अमराज शेखू यानी कि उम्र शेखू का है, वो खुश्की की गलबा है। तो एक साफ
साफ साफ होता है कि ये एक अमराज रतूबी है। इसलिए अगर सपोज कभी कभी ये जो पेडियाट्रिशियन में बच्चे को मुसिबियान होते हैं तो डायसिपाम का सिरप पिलाता है। डायसिपाम का मिजाज क्या है? सर्द खुश्क, सर्द इसलिए तो खुश्क। नींद आता है, इसलिए तो नींद आते हैं। तो हम जो ऊद सलीब वाला हो, जो भी चीज जो इस्तेमाल करते हैं, इवन हम लोग असरोफिन भी देते हैं, कुछ डॉक्टर लोग एक सिरे शिफा भी देते, क्योंकि इसके अंदर छोटी चांद या असरोल या रावल्फिया सरपेंडाइना, ये सर्द खुश्क कैफियत की वजह से, कभी कभी मुनव्विम असर की वजह से कुछ लोग ब्रह्मी भी इस्तेमाल कर से वक्ती तौर पे उस रुतूबत को कम करके इसको तो याद रखो, या तो उसकी रुतूबत कोई गिजा की वजह से बढ़ रहा है, कोई ताफुन की वजह से बढ़ रहा है, या उसकी रहन सहन के, ये पहले रोल आउट करो। उस बॉडी से अगर आप उसकी रुतूबत को उसकी मिजाज के मुताबिक, याद रखो ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद उससे ज्यादा रुतूबत वाला उसके घर में हो सकता है, उससे ज्यादा रुतूबत उसके खानदान में, उसके दोस्त में होते हैं, उनको सब किसी को एपिलेप्सी नहीं हो रहा है, फिर इसको क्यों हो रहा है? मैं ये लफ्ज इसलिए बताया, जिस मिजाज के एतबार से अजमल का जो बिहेवियर है, ये मेरी रुतूबत और यबूसत की वजह से, मेरे अंदर अगर यबूसत आ गया तो मेरा जिद्दीपना बढ़ेगा। अगर एकदम एक्सट्रीम जाएंगे, बोले ये पुरानी अजमल आई नहीं, तो उस इतिबार से अगर आपको ये रुतूबत को कम करने वाली कोई भी तदाबीर अगर इस्तेमाल करें, उसमें ज्यादातर जैसे आप फॉर एग्जांपल अकर करा, ऐसे बहुत सारे चीज एपिलेप्सी में मुसलसल इस्तेमाल करते। गरम खुश्क दवा से रुतूबत को कम करके एपिलेप्टिक फिट को रोक सकते हैं। अगर एपिलेप्सी जैसे हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना चाह रहे तो सर्द खुश्क दवा, फॉर एग्जाम्पल अफ्यून सबसे बेहतरीन चीज है एपिलेप्सी के लिए। रत्ती भर खिला दो डेली, उसको फिट्स नहीं आएंगी। उसको हब्बे अमल खिलाओ, हब्बे अमल बेसिकली अमल के लिए, लेकिन हब्बे अमल से भी एपिलेप्सी रोक सकते कि उसके अंदर अफ्यून है। हब्बे नजला से भी एपिलेप्सी रोक सकते, उसके अंदर भी अफ्यून है। कभी शरबत खसखस से उसकी एपिलेप्सी को रोक सकते कि उसके अंदर खसखस है। बरशाशा एपिलेप्सी के लिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर अफ्यून है। ये सब सर्द खुश्क है, ये सब अलामती है। ट्रीटमेंट आपको ये देखना है कि रुतूबत की गलबा अगर है तो आप कभी कभी बोलो उसको मुसलसल मैं एक दवा देता हूँ, अजुन फलासफा या आपको जवारिस जारी नूस या आप असरा की। और कभी कभी क्या होते, जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी में रुतूबत हो। मैदे अमराज शिरकी बोल के एक चीज आता है, अमराज शिरकी, मैदे की खराबी की वजह से एपिलेप्सी आ सकते, कई एंग्जाइटी स्ट्रेस की वजह से आ सकते, कोई कोई तकलीफ दर्द की वजह से हो सकते, एंग्जाइटी से हो सकते, कुछ भी हो सकते। क्योंकि कभी कभी याद रखने का, एपिलेप्सी बेसिकली अमराज शिरकी, अमराज असली के तौर पे नहीं आता। अमराज असली जब हम बोल सकते ब्रेन ट्यूमर है उसको, ये अमराज, ये जो एपिलेप्सी है बेसिकली दिमाग की वजह से, तो हम बोल सकते अमराज असली है। किसी को एंसेफेलाइटिस हो गया, तो कोई ऐसी चीज हो गया, तो हम बोल सकते इसकी वजह से। तो याद रखो, पहले फाइंड आउट करो ये रुतूबी है क्या, या यबूसत की एक्सट्रीम के उसके ऑपोजिट यबूसत की एक्सट्रीम की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकते, जो बूढ़े लोग को होते हैं। कभी कभी एकदम दवा हो गया, सोडियम कम हो गया या पोटेशियम कम हो गया, उसकी वजह से भी हो सकते। तो अच्छा, मेरा कहने का मतलब मैं कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा हूँ। रुतूबी अमराज है, रुतूबत को मेंटेन रखो। दूसरी चीज ये शिरकी है क्या या असली है क्या, इधर फाइंड आउट करो, देन गो एज पर दैट। थैंक यू डॉक्टर। वन मिनट सर। बहुत देखिए बहुत सर, शुक्रिया सर। वन मिनट क्या सर, एक जो होता है क्या बच्चों में होता है, एक जो जो बच्चा पैदा होते हैं उसके बाद जो उसको ज्यादा फीवर होने के साथ उसको होता है, वो अलग हो गया। एक क्या होता है सर, कुछ साल बाद, जैसे कि उसके दादा को परदादा को था, बट अब उसके बाद उसको आ गया, यानी दैट मीन उसका रुतबत उसके जिसको दादा को था उसके जैसा उसको भी हो गया होगा शरीर में। तो एक वो हो गया सर। एक तो क्या होगा, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइटिक जो है तो वो हो गया, तो वो तो हमको दिखेगा सर। बट ये ऐसा भी मर्ज नहीं है, क्योंकि हम इसमें अलग ईसीजी ईईजी करेंगे तो हमको कुछ भी फाइंड आउट नहीं मिलता है। तो सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब को अमराज आसाब के तौर पे मत पढ़ो। अमराज आसाब के तौर पे मॉडर्न नजरिया है, यस सर। हम पढ़ेंगे कैफियत के इतिबार से, तो आपको आपके सवाल का भी जवाब उसमें आ जाएंगे। सर देखिए सर, इसको ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि सर इसका इलाज मॉडर्न में प्रॉपर कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि वो लोग
सिर्फ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स ही दे रहे हैं, उसके सब इसी यही चला रहे हैं, और 5 साल 10 साल ये नहीं तो वो नहीं तो वो, तो इसको मैनेज कैसे करें सर? एंटी डाइट से। कन्वर्शन ड्रग का मतलब भाई, इसके एंटी कन्वर्शन का मतलब ये है कि सर्द खुश्क दवा, यस सर। समझा? तो यानी कि रुतूबी अमराज है, मैं ये बता रहे इसकी खाने पीने में खट्टी चीज से दूर रखो, कार्बोहाइड्रेट से दूर रखो, प्रोटीन प्रोडक्ट खाओ, उसको बोलो प्रोटीन की सप्लीमेंट, फैट नहीं प्रोटीन सप्लीमेंट को बढ़ाओ। प्रोटीन सप्लीमेंट का मराद ये कि इसके अंदर, और दूसरा कोई ब्रेन को ताकत देने, ब्रेन को एक तरफ ताकत के साथ साथ उसकी जनरल उमूमी मिजाज में उसकी मैदे की, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, वो अक्सर उसको महीने में 2 बार 3 बार उसको क्या आते हैं, एपिलेप्सी आती है। इज अराउंड 20-21 ईयर ओल्ड, दुनिया भर की इलाज कर चुके, दुनिया भर की EEG निकाले, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैंने उसको सवाल पूछे CBI के जैसे सवाल पूछते आखिर मुझे क्या जवाब मिला, मतलब पहचान, जिस दिन वो बीफ खाता है या बीफ की सालन भी इस्तेमाल किया 10 मिनट में उसको फिट्स आता है। तो जिस दिन वो बीफ, उसने बोला जिस दिन सर अब मैंने बीफ छोड़ दी उसके बाद मुझे आज तक एपिलेप्सी नहीं आई। तो गर्म। एक ब्रीफ हिस्ट्री, क्योंकि वो मैदा उसकी मैदे में जाके उसको गैर तबी सोए आजम पैदा कर रहा है, उसकी वजह से उसको तकलीफ है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सर। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जो मूवेबल कपिंग करते हैं पेशेंट में, क्या क्या? सर्वाइकल डिफिकल्टी, मूवेबल कपिंग, हाँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम्म। तो पेशेंट पेन बहुत कंप्लेन करता है। क्या कंप्लेंट करता है डॉक्टर? पेन सर, पेन। जी जी, मूवेबल कपिंग में सर। डॉक्टर साहब हमेशा याद रखो, सर्वाइकल एरिया में वाइब्रेशन आ रहा है। आप आपकी ये बंद कर वाला आपकी माइक। सर्वाइकल रीजन में सबसे ज्यादा नर्व्स जो बहुत ही क्लोज है, ओके, बाकी कोई मकाम में बहुत जगह पे मसल में हम लोग मूवमेंट करते हैं। ये जो स्टेनोक्लेइडोमास्टोइड्स जितने भी यहाँ जो नस जो आ रहे, सब चीज जब आप कपिंग करते हैं तो कप के अंदर पूरी की पूरी नस भी ऊपर आ जाते हैं। इसके लिए आप हमेशा याद रखो, पेशेंट की जो बर्दाश्त करने की यानी कुव्वत बर्दाश्त की जो थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से कप को उतनी प्रेशर दो। ओके, उतनी प्रेशर देने से क्या होता है कि वो धीरे से, क्योंकि अगर सपोज अगर आप यहाँ से सर्वाइकल कपिंग ऐसा कर रहे, यानी कि एक मूवमेंट आप सपोज ऐसा एक मूवमेंट दे रहे, तो उसको पेन कम रहेंगे। अगर आप आड़ा टेढ़ा मूवमेंट देंगे ऐसा, इसको बोलते हैं ओब्लिक मूवमेंट, यानी कि आपने ऐसा ऐसा कप मूव कर रहे तो पेन होती है। द मूवमेंट शुड बी समथिंग लाइक दिस, यानी along with the root of nerve या along with the root of muscle या along with the root of ligament या टेंडन। आप टेंडन में रह के अगर उल्टा सीधा अगर मूवमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर सपोज आपकी कोई एरिया में जो वेरी मस्कुलर एरिया में अगर आप रख के मसाज कर रहे इधर इतने एरिया में, तो मसल उतना उसको हर्ट नहीं करते, जैसे अभी पीठ में मसाज कर रहे हैं स्कैपुला के रीजन। लेकिन नस की एरिया में कैरोटिड, इवन कैरोटिड आर्टरी भी है, वो पूरी की पूरी चीज आ जाता है। और दूसरी चीज याद रखो, पेन की एक वजह ये जो सर की जो एरिया, मेरे पास एक किताब मैंने बनाया, छापा भी है, मैं कोशिश करूंगा आप लोग तक पहुंचाने के लिए। वो एक अहम किताब है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, किस बीमारी में कहाँ आपको टेस्ट करना, समझा? बाकी कहीं आप हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। उसको बोलते मार्मा, उसको बोलते ट्राइगर पॉइंट। ओके, तो यहाँ बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट है, बंद करो। ये ट्रिगर पॉइंट बहुत सारे, और ये ट्रिगर पॉइंट आपके लिए एक बटन है वो बीमारी को सही करने की। सिर्फ बटन में ही खेलो, पूरी अतराफ जाके खेलो ही मत। तो वो मैंने किताब छाप चुकी है, मैं कोशिश करूंगा अभी मैं समझी लखनऊ में लेके आना पड़ेंगे तो 350-400 किताब लेके आना पड़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा किताब लेके आ जाऊंगा इंशाल्लाह।
वो किताब छाप चुके हैं कि वो खास तौर से हमारी जो ये जो थेरापी ट्रीटमेंट जो करते हैं क्लिनिक, उसके लिए उसको सीटीएस में, सर्वाइकल में, लंबार में, शायटिका में, उसको कहाँ कब लगाना है, कहाँ उसको मारना है, लात मारना है, हाथ मारना है, कुछ भी करना है, वो सिर्फ एरिया मार्क किया मैं, ताकि आप पेशेंट को पूरी की पूरी तेल लगा के उसको रंदा बोलते हैं ना क्या, जो ये कारपेंटर लोग, ऐसा रंदा मत मारो बॉडी में। ओके डॉक्टर साहब, तो याद रखो थोड़ा सा डिले करो। ओके, थैंक यू। सर कितना मिनट आपका और है सर? मेरा तो ओवर हो चुके, लेकिन एक दो सवाल हम सुन सकते हैं। एक दो सवाल। डॉक्टर सबिहा चली गई, अच्छा ठीक है। कोई लोग लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि ये सिर्फ मेरा बोलना तुम्हारा सुनना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बोलना मेरा भी सुनना। मैं भी तो शागिर्द हूँ, ये नहीं है कि एक तो नाइंसाफी है। एक आदमी बोल रहा है, 100 जन सुन रहे, 100 जन अगर बोलेंगे तो मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ, बोलिए। डॉक्टर सगीर, कुछ आपका एक्सपीरियंस? अभी नीचे अब्दुल्ला कुछ बोल रहा है। अब्दुल्ला से बोलिए। हाँ बोलिए सबिया जी। शुरुआत हाँ जी अलीगढ़ सबिया जी बहुत पहचान है। सर मेरा हेलो जी, अस्सलाम सर। सर फिरदौसुल हिकमत में मैंने एक जगह पढ़ा था कि दिमागी अमराज में हिजामा जो है तलवे में करें, हिजामा के तलवे में, सोल में। यस यस यस। तो सर थोड़ा सा मैं वजाहत चाहूंगी इसके बारे में। यस, आपने किए उसको? नहीं सर, मैंने अभी करा नहीं है, मैं लेकिन करूंगी इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा वजाहत चाह रही थी। इसकी जवाब बताओ, जो उलझन घबरा। उसकी जवाब बताओ डॉक्टर साहब। सर मालिश के लिए लिखा है तलवे में। सुनो, मैंने बहुत सारे किताब रेफर किए, उसमें चाइना वाले एक वो निकाले थे, एक चप्पल लंबाई बढ़ाने के लिए, इंसान की कद, जो एक्यूप्रेशर वाला चप्पल, यानी कि पैर के नीचे एक पॉइंट बहुत सारे, मतलब नोकीलेदार चप्पल। उनका कहना है कि सुबह शाम आधा घंटा वो पहन के चलो तो आपकी वजन में आपकी साइज बढ़ेगी। आपको ऑनलाइन में भी मिलेंगे वो। तो उसकी प्रिंसिपल, उसकी साइंस ये कि आपकी जो बड़ी उंगली है जो पैर के नीचे में, वहां आपकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड की और ग्रोथ हार्मोन की बहुत सारे नर्व एंडिंग आपके पैर के नीचे, और वो पैर के नीचे आपको स्टिमुलेट करने से बहुत सारे एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन हार्मोन को वो स्टिमुलेट करता है। नंबर 1। नंबर 2, आजकल स्टडी हुआ है कि जमीन हम लोग को ताकत देता है, और बहुत सारे घर पे हम लोग अर्थिंग फिट करते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या है? कभी कहीं कोई बिजली हो गया तो जमीन पे गाड़ देते हैं, किसको? ताकत को। जैसे इंसान की ताकत कभी ज्यादा भी हो गया तो गाड़ने की कोई जगह नहीं। तो पुराने जमाने में कहते हैं कि तुम लोग बगैर चप्पल पहना करो, यानी कि हम लोग को आजकल जमीन से कोई कनेक्शन नहीं, जमीन से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं। जमीन से हमको एनर्जी मिलता है, हमारी गैर तबई एनर्जी जमीन से चले जाते। सिर्फ देहात की लोग भी, इवन आदिवासी भी आजकल चप्पल पहनता है। तो हमारे और अनासिर, हम खुद बनी सौदा से, ये मिट्टी से, और मिट्टी से हमारी कोई साबिका, कोई रिश्ता नहीं आजकल। इसीलिए बहुत सारी बीमारी होता है आजकल, जो लेटेस्ट स्टडी रिसर्च बता रहे। दूसरी चीज, मैंने किताब पढ़े, शायद आप लोग से डिस्कस भी किए थे आप लोग को, मैंने पैर के नीचे जो गांजा जिसको कहते हैं हेम्प, गांजा अगर समझो बकरी की दूध में लेप कर दिया जाए तो इंसान को वापस, जैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं ना, मोबाइल फॉर्मेट किया, सब डिलीट करके वापस कंप्यूटर को फॉर्मेट किया, उसकी वायरस को निकाल दिया। उसके लिए इंसान की वायरस को निकालने की फॉर्मेट बताया कि पैर के तलवे के ऊपर गांजा की पत्ते को पकड़ के लेके जाएंगे, अगर कोई सुनेगा तो, गांजा के पत्ते को बकरी के दूध में लेप करके मेहंदी की वजह से लेट जाओ रात में,
क्योंकि उसमें इंतहाई किस्म के यानी कि कभी कभी 48 आवर्स आदमी सो जाएंगे सुकून से, जब वो उठेंगे ऐसा लगेंगे कि उसको पहली बार मतलब उसकी दिमाग की पूरी एक फ्रेश फीलिंग होता है। उसमें कहते हैं कि तुम्हारे डायबिटिक तक अच्छा होता है, बोलते कि लिखा है वो जिसने इस्तेमाल किया, जिसने तजुर्बा किया। बहरहाल मेरा कहने का मतलब पैर के नीचे बहुत सारी जगह पे नर्व एंडिंग है, वो खास तौर से दिमाग और पिट्यूटरी ग्रंथि से कनेक्टेड है। इसलिए तवे पे मसाज करना, एक्यूपंक्चर पॉइंट है, हिजामा का भी पॉइंट है, ये सब हम लोग को करना है। कोई हमको कराएगा नहीं, हमको कोई दिखाएगा नहीं। दिस इज यू हैव टू या वी हैव टू डू द ट्रायल एंड बेसिस पेशेंट, क्योंकि तजुर्बा एंड मुशाहिदे के ऊपर डिपेंड है यूनानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।